Hello guys, today we are going to discuss the entire methods of preparation and chemical reactions of aromatic hydrocarbons. So let us first begin with the general methods of preparation. The first method of preparation comes from alkane. If you remember from alkane, the preparation of alkane with respect to sodium salt of a carboxylic acid. ये मैंने alkanes में explain किया था, where you do decarboxylation using soda lime. Just for the revision, I hope you remember this. That RCOONA is a sodium salt of carboxylic acid. We use NaOH in presence of CaO. So Na2CO3, decarboxylation. Matlab removal of CO2 in the form of salt, and H goes to R. It forms RH plus you get Na2CO3. So carbonate, matlab CO2 is removed in the form of carbonate. So that is called as decarboxylation, and mixture of NaOH and CO is called as soda lime. If you recollect this reaction, it's the same reaction, but this time you need to take a sodium salt of a benzoic acid, aromatic acid. Aromatic acid is given by the formula C6H5COH. When you react aromatic acid with a base, it forms a sodium salt or potassium salt. So you take sodium salt of a aromatic acid. मतलब Na की जगह पे H होगा तो C6H5COH benzoic acid होगा, and when you react that benzoic acid with a base तो वो आपको एक salt produce करके देगा. तो you take, for example, we take sodium salt of benzoic acid, benzene का sodium benzoate, सोडा लाइम ऐड किया, सेम रिएक्शन, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होता था, सी वाला बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो रहा था विद आर. So this becomes your R like in alkane. The bond break from your this part, it breaks. यहाँ से break हो जाएगा. Now this entire thing is removed in the form of what? Na2CO3, and the H goes to ring. So you get C6H6 benzene ring. C6H5CONA. CONA is loss in the form of Na2CO3. Okay, and H goes and attached to C6H5 to make it C6H6 benzene. Now this is benzene. Suppose मैंने sodium salt of 2-methyl benzoate लिया, 1 2, first position, second position. So again ये bond यहाँ से break होगा, यहाँ से break होगा, H goes to this first position. So you get a structure like this, toluene CH3 plus Na2CO3. वो H आके यहाँ पर attach हो जाएगा, हाइड्रोजन यहाँ पर attach हो जाएगा. So now ये molecular formula will change. It becomes C6H5CH3, toluene. Now basically this is a lab method, and aromatic acid को हम लोग ऐसा represent करते हैं जब आप इसको NaOH से react करते हो. So you get that sodium salt ArCOONA जो हम लोगों ने यहाँ पर use किया है. Remember this point. Now suppose we take a dicarboxylic acid, phthalic acid. phthalic acid को आपने react किया NaOH से, तो दोनों H, एसिड है बेस है, एसिड बेस में कौन सा रिएक्शन होता है? न्यूट्रलाइजेशन. यहाँ से H लॉस हो जाएगा, यहाँ से OH, मतलब H2O इज लॉस फ्रॉम योर. इट रिजल्ट इनटू द फॉर्मेशन ऑफ C डबल बॉन्ड O माइनस Na प्लस, C डबल बॉन्ड O माइनस Na प्लस. दिस इज कॉल्ड एज सोडियम थैलेट. ओके, नाउ इन दैट सोडियम थैलेट व्हेन यू ऐड सोडा लाइम, अगेन देयर इज अ लॉस, यहाँ से एक लॉस हो जाएगा. ठीक है, यहाँ से CONA लॉस होगा विथ Na2CO3 के फॉर्म में. H goes to the ring, so you get a ring like this, benzene. ये दोनों जगह पे H अटैच हो गया, बाकी सब पे भी H है तो बेंजीन बन गया. प्लस you get 2 moles of Na2CO3. So you take any sodium salt of acid, any dicarboxylic acid, monocarboxylic acid, decarboxylate, get the answer, the aromatic compound. The second is reduction of phenol, where you use a zinc dust. Phenol is C6H5OH. Reduction also means removal of oxygen. So this bond will break here. ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा, H goes to the ring. फिनॉल को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं C6H5OH. So when this H goes to the ring, C6H5 get converts into C6H6. C6H6 benzene plus, वो H इधर आ गया देखो. This O goes to the zinc and it form zinc oxide. This is reduction basically using zinc. जिंक को हम लोग ने एलिमिनेशन, बहुत सारे एलिमिनेशन रिएक्शन में यूज़ किया. इफ़ यू रिमेंबर, elimination of dihalides to form alkene, elimination of tetrahalides to form alkynes, elimination of alpha gamma halides to form cyclocompounds. यहाँ पर हम लोग यूज़ कर रहे हैं देखो ऑक्सीजन निकालने के लिए. तो एलिमिनेशन में जिंक काफ़ी यूज़ होता है. ओके, द नेक्स्ट इज रिडक्शन ऑफ क्लोरोबेंजीन. क्लोरोबेंजीन इज C6H5Cl. रिडक्शन के लिए, रिडक्शन मीन्स एडिशन ऑफ हाइड्रोजन. यू यूज़ निकल एंड अलॉय एल्यूमिनियम, निकल एंड अलॉय, निकल एंड एल्यूमिनियम का अलॉय यूज़ करो.
leached by NaOH, basic media. This bond will break here. तो ये क्लोरोबेंजीन का फॉर्मूला क्या था? C6H5Cl. When this bond break here, C6H5 departs. उससे कौन अटैच हो जाएगा? H, and one of the H goes to Cl, so you get answer C6H6 plus HCl. So this is your C6H6 benzene. Third method, simple reduction, addition of hydrogen. The next method is hydrolysis of Grignard reagent. Everyone is aware Grignard reagent is RMGX, लेकिन aromatic Grignard reagent लोगे तो ARMGX, aryl magnesium halide, और normal अल्काइल फॉर्म में RMGX होता है. तो दो टाइप के Grignard हो गए. RMGX is for alkyl magnesium halide, RMGX alkyl magnesium halide, or you have ARMGX aromatic aryl magnesium halide. Aromatic is aryl group. So suppose we take this, इसका नाम हो जाएगा phenyl magnesium bromide, that is C6H5MgBr. This is C6H5 phenyl ring. हाइड्रोलिसिस, वाटर ऐड किया है, ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो जाता है. आपको याद होगा जेरिविटन ऑफ रिएक्शन. व्हेन ग्रिग्नार्ड कम्स इन कॉन्टैक्ट विथ हाइड्रोजन अटैच टू ONS नॉस, तो ग्रिग्नार्ड का बॉन्ड ब्रेक होता है एंड H गोज टू द रिंग टू फॉर्म द अल्केन. तो यहाँ पर अरीन्स बन जाएगा. तो C6H5 C6H6 प्लस Mg अटैच टू X एंड OH. क्लियर है? Now by using this reaction you can also make us alkyl benzene, substituted benzene आप बना सकते हैं. मतलब R ग्रुप को बेंजीन पे अटैच कर सकते हैं. कैसे? आप हेलोबेंजीन ले लो, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, मैग्नीशियम से रिएक्ट करें प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, सो इट रिजल्ट इनटू द फॉर्मेशन ऑफ MgX, ग्रिग्नार्ड. और यही ग्रिग्नार्ड को आप रिएक्ट कर दो RX से. सो व्हाट विल हैपन? RX से रिएक्ट करोगे तो ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा. Br गोज टू Mg, CH3 गोज टू द रिंग, सो इट फॉर्म्स CH3 विद द रिंग. ऐसा भी अल्काइल को रिंग पे अटैच कर सकते. टोलिन बन गया ये. You get MgX and Br. You can make it by using an RX with Grignard. Gives you this result. Next you do hydrolysis of benzene sulfonic acid. लेकिन कैसा हाइड्रोलिसिस करोगे? वाटर ऐड करोगे बट इन द फॉर्म ऑफ स्टीम एट अ हाई टेम्परेचर 150 से 200 डिग्री सेल्सियस. इसमें ये बॉन्ड यहाँ से क्लीव हो जाएगा, ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो जाएगा. H गोज टू द रिंग, OH गोज टू SO3H. तो यू गेट C6H6 बेंजीन प्लस H2SO4. सल्फ्यूरिक एसिड इज रिमूव्ड. ओके. फॉर एग्जाम्पल इफ आई टेक 1 2 3 4 5 6 3,5 डाइमिथाइल बेंजीन सल्फोनिक एसिड. स्टीम से रिएक्ट किया, ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो गया. H गोज टू द रिंग, OH गोज टू SO3H, सो यू गेट अ रिंग. यहाँ पर H आ गया. हियर यू हैव अ CH3, हियर यू हैव CH3 प्लस H2SO4. नाउ दिस बिकम्स 1 2 3 1,3 डाइमिथाइल बेंजीन बन गया ये एरोमेटिक. The next reaction is Wurtz-Fittig reaction. Now everyone is familiar with this word Wurtz reaction. Wurtz reaction में क्या होता है? Higher alkane बनता है. कैसे? When RX reacts 2 moles of RX when reacts with sodium in presence of dry ether, NaX will be removed. Both the are combined to form higher alkanes. लेकिन हम लोग यहाँ Wurtz reaction नहीं पढ़े, Wurtz-Fittig reaction. Wurtz-Fittig reaction में alkyl benzene बनता है, alkyl group attached to benzene. कैसे? You take a aryl halide, you take alkyl halide. Okay, so when aryl and alkyl mix together, this part NaX will be lost. R goes and attached to the ring, so you get a R attached to a phenyl ring that becomes the alkyl benzene, plus you have 2 moles of NaX. Now याद रखना, if it's a mixture of alkyl and aryl, then it is Wurtz-Fittig. लेकिन आपने सिर्फ अराइल और अराइल लिया. सी हैव टेकन 2 अराइल ग्रुप्स, 2 एरोमेटिक ग्रुप्स. तो अगेन NaBr विल बी रिमूव फ्रॉम योर एज यूजुअल. 2 रिंग्स विल अटैच टू फॉर्म बाइफिनाइल्स, 2 फिनाइल ग्रुप्स टुगेदर प्लस 2 मोल्स ऑफ NaBr. तो ये सिर्फ फिटिग रिएक्शन होता है. फिटिग में आप 2 अराइल लेते हो, Wurtz-Fittig में अल्काइल और अराइल लेते हो. लेकिन Wurtz-Fittig के प्रोडक्ट क्या होते हैं? सपोज यू टेक अराइल हलाइड एंड अल्काइल हलाइड, ARX is mixed with
RX. So you get 3 प्रोडक्ट. फर्स्ट प्रोडक्ट जब ये दोनों निकल जाएंगे यहाँ से, CH3 रिंग से अटैच होगा, तो यू गेट दिस क्रॉस प्रोडक्ट CH3 जो वर्ड्स में होता था. दिस इज क्रॉस प्रोडक्ट. But what happens? Some amount of phenyl bromide reacts with one more phenyl bromide and they give you one self product like this. जो Wurtz reaction में हम लोग देखे थे, same. Similarly, CH3 reacts with the CH3 to form ethane. So this 3 product will be formed. This 3, out of this 3, 2 will be self and 1 will be cross, similar to that of Wurtz reaction. So this is Wurtz fatigue. Fatigue will be only when 2 alkyl groups are attached. एंड नॉर्मल Wurtz रिएक्शन वेयर भी 2 अल्काइल ग्रुप्स होगा एंड फेटिग में 2 अराइल ग्रुप्स आ जाएंगे. और नेक्स्ट रिएक्शन भी आपने देखा है, क्लेमेंसेंस रिडक्शन. ये रिएक्शन अल्केन्स में देखा होगा बाय यूजिंग एरोमेटिक अल्डिहाइड एंड कीटोन. आपको याद होगा इन केस ऑफ अल्केन वी हैव सीन कि क्लेमेंसन रिडक्शन में यू टेक RC डबल बॉन्ड OH अल्डिहाइड और RC डबल बॉन्ड OR कीटोन, रिएक्ट विद जिंक अमालगम इन HCl, यू हीट इट, नेसेंट हाइड्रोजन है. तो नेसेंट हाइड्रोजन का काम क्या है? टू रिड्यूस दिस C डबल बॉन्ड O ग्रुप इनटू अ CH2 ग्रुप. सो यू गेट RCH2H या RCH3 या RCH2R अल्केन. C डबल बॉन्ड O को CH2 ग्रुप में कन्वर्ट करता है. तो सेम थिंग हियर, व्हेन यू टेक जिंक अमालगम HCl बट यू दिस टाइम यू टेक अ एरोमेटिक aldehyde या aromatic ketone. Suppose I take a aromatic ketone here, methyl phenyl ketone, also called as acetophenone. और यू टेक बेंजाल्डिहाइड एरोमेटिक, जिंक अमालगम HCl, नेसन हाइड्रोजन. उसका काम क्या होगा? C डबल बॉन्ड को किस में कन्वर्ट करना है? CH2. सो हाइड्रोजन गोज एंड अटैच टू दिस कार्बन एटम टू फॉर्म CH2. तो यू गेट अ रिंग C6H5 CH2 CH3 इथाइल बेंजीन. देखो इसमें भी वही होगा, C डबल बॉन्ड कन्वर्ट्स इनटू CH2, तो C6H5 CH3. क्लेमेंसेंस विथ एरोमेटिक कंपाउंड. द नेक्स्ट इज एरोमेटाइजेशन ऑफ अल्केन. ये आप लोग अल्केन में रिफर करना, रिफर दैट इन अल्केन. इफ यू रिमेंबर, कार्बन ग्रेटर देन 6 और इक्वल टू 6 विल अंडरगो एरोमेटाइजेशन प्रेजेंस ऑफ दीज कैटलिस्ट, क्रोमिक ऑक्साइड, वेनेडियम पेंटाऑक्साइड या मोलिब्डेनम ऑक्साइड या एल्यूमिनिया एट 500 टू फॉर्म एरोमेटिक बेंजीन. 6 होगा तो बेंजीन बनता था, 7 हेप्टेन होता था तो टोलीन बनता था, लाइक दैट. नेक्स्ट रिएक्शन भी आपने देखा है अल्काइंस में, पॉलीमराइजेशन ऑफ अल्काइंस यूजिंग रेड हॉट आयन ट्यूब. If you take 3 moles of acetylene, you get benzene. 3 moles of propyne, you get mesitylene. ये मैंने alkynes में cover किया. Let's move on to the next important, very important reaction. Reduction of diazonium salt. Something new for you. Interesting है समझने के लिए. First of all, we're going to reduce, मतलब add hydrogen. Okay, reduce it. रिडक्शन ऑफ विच कंपाउंड? अराइल डाइजोनियम हैलाइड. पहले ये बात समझ लो क्या है अराइल डाइजोनियम हैलाइड. अराइल मीन्स एरोमेटिक, डाई मीन्स 2, एजो मीन्स 2 नाइट्रोजन. एजो को नाइट्रोजन ग्रुप से रिप्रेजेंट करते हैं, तो डाई एजो मीन्स 2 नाइट्रोजन. ओनियम, ओनियम कब यूज करते हैं? व्हेन अ नॉन मेटल कैरी अ पॉजिटिव चार्ज. तो नाइट्रोजन एक नॉन मेटल है, अगर उस पर पॉजिटिव चार्ज होगा तो वो डाइजोनियम बन गया. इसका मतलब डाई मीन्स 2 नाइट्रोजन, आउट ऑफ 2 नाइट्रोजन 1 ऑफ द नाइट्रोजन विल कैरी अ पॉजिटिव चार्ज ऑन इट. और उस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए वी हैव अ हैलाइड. हैलाइड इज नेगेटिव चार्ज. तो ये एक सॉल्ट हो गया. लेकिन किसका सॉल्ट है ये? एरोमेटिक कंपाउंड. रिप्रेजेंट कैसा करेंगे? सिंपल डाइजोनियम सॉल्ट. सपोज मैंने ले लिया बेंजीन का, तो C6H5 इसका फॉर्मूला हो जाएगा C6H5, द रिंग N2 प्लस X माइनस बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड. ओके, अब समझो Cl माइनस लिया तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड. एक बॉन्ड है ना नाइट्रोजन का, इसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड रहता है, इसके लिए इस पर पॉजिटिव चार्ज आता है, वो अपना लोन पेयर दे देता है. ये नाइट्रोजन अपना लोन पेयर सस्टेन रखता है, और ये नाइट्रोजन अपना लोन पेयर देता है, इसके लिए 4 बॉन्ड बनाता है. तो ये अमोनियम जैसा बन गया, ओनियम NH4 प्लस, N 4 बॉन्ड बना है. सो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से हम लोग को बेंजीन बनाना है. मतलब इसी कंपाउंड में आपको हाइड्रोजन ऐड करना है ताकि ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो जाए और C6H5 C6H6 में कन्वर्ट हो जाए. सिंपल है, क्लियर है. बट क्वेश्चन है कि सर ये बनाएंगे कैसे कंपाउंड? तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये कंपाउंड को प्रिपेयर कैसा किया जाता है, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड. बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड इज फर्स्ट ऑफ ऑल अ हाईली अनस्टेबल कंपाउंड.
इसकी स्टेबिलिटी सिर्फ 0 से 5 डिग्री सेल्सियस में होती है. इफ द टेम्परेचर इज ग्रेटर देन 0 to 5 डिग्री सेल्सियस, ये बॉन्ड पूरा ब्रेक हो जाता है, यहाँ से N2 गैस रिलीज हो जाता है, तो ये कंपाउंड उस फॉर्म में नहीं रहता. बनता कैसे है? बाय टेकिंग एनालीन. एनालीन एनालीन को हम लोग रिएक्ट करेंगे नाइट्रस एसिड से. नाइट्रस एसिड इज HNO2, 0 to 5 डिग्री सेल्सियस में. दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज डाइजोटाइजेशन रिएक्शन, क्योंकि डाई एजो ग्रुप आने वाले हैं, इसके लिए इस रिएक्शन को हम लोग ऑल्सो कॉल्ड एज डाई एजोटाइजेशन रिएक्शन, एडिशन ऑफ 2 नाइट्रोजन ग्रुप्स. बट नाइट्रस एसिड जो है वो भी एक अनस्टेबल कंपाउंड है, उसको फ्रेशली बनाना पड़ता है, क्योंकि अगर आपने बना के रखा तो इट विल रैपिडली डिकम्पोज टू फॉर्म NO2 NON H2O, वो ब्रेक हो जाएगा. तो HNO2 इज ऑलवेज फ्रेशली प्रिपेयर्ड. किससे? बाय यूजिंग सोडियम नाइट्राइट एंड HCl. ये दोनों को आप टेस्ट ट्यूब में ले लो, मिक्स करो, यू गेट HNO2. वो HNO2 को आप ऐड कर दो एनालीन में. बट ये एनालीन का बीकर आप किस में रखोगे? फ्रीजिंग मिक्सचर में, जो टेम्परेचर क्या रखे? 0 to 5 डिग्री. स्टर इट लिटिल बिट. व्हाट विल हैपन? दिस NH2 में this nitrogen goes and attached to the nitrogen atom along with one of the Cl to form a diazonium salt and water will be removed. क्लियर है? पर याद रखना 0 to 5 डिग्री होना ज़रूरी है इस रिएक्शन के लिए, तो इसको डाइजोटाइजेशन बोलते हैं. तो आप ये कंपाउंड ले लो बेंजीन बनाने के लिए. तो आपने एनालीन लिया, एनालीन को पहले किस में कन्वर्ट किया? डाइजोनियम सॉल्ट. बाय डाइजोटाइजेशन रिएक्टिंग विद नाइट्रस एसिड, प्रेजेंस ऑफ NaNO2 and HCl. नाउ यू टेक दिस डाइजोनियम क्लोराइड, react this diazonium chloride with certain reagent. पहला reagent हाइपोफॉस्फरस एसिड. तो मैंने बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड लिया, उसको हाइपोफॉस्फरस एसिड से रिएक्ट किया इन प्रेजेंस ऑफ वाटर. कैटलाइज करने के लिए क्यूप्रस सॉल्ट डाल दिया, Cu2Cl2, क्यूप्रस, जिसमें कॉपर का चार्ज +1 है. कैसा रिएक्शन होगा? ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, तो C6H5 पार्ट निकल गया. ओके, one of the H goes to the ring, another H goes to Cl, N2 निकल जाएगा, O goes to हाइपोफॉस्फरस. तो प्रोडक्ट क्या बना? पहले वाला बेंजीन, C6H6, H आ गया इधर, प्लस HCl निकल गया, प्लस N2 गैस हो गया, प्लस यू गेट H3PO3, PO2 से PO3, हाइपोफॉस्फरस एसिड से फॉस्फोरस एसिड बन गया, हाइपो से फॉस्फोरस एसिड बन गया. क्लियर है? तो बराबर देखोगे तो दिस हाइपोफॉस्फोरस एसिड इज बेसिकली एक्टिंग एज अ रिड्यूसिंग एजेंट. इसके लिए वो खुद ऑक्सीडाइज हो गया और उसने हाइड्रोजन ऐड करवा के रिंग को रिड्यूस कर दिया. सेम थिंग रिडक्शन कैन ऑल्सो बी कैरी आउट बाय यूजिंग इथेनॉल. टेक इथेनॉल, देखो ऐड करो बेंजीन डाइजोनियम में, ये ब्रेक हो जाएगा. यहाँ से ये पार्ट निकाल दो, H. क्लियर है? ये भी H निकाल दो. तो दिस H गोज टू रिंग, वन ऑफ द H गोज टू Cl, तो यू गेट C6H6 बेंजीन प्लस HCl प्लस N2 गैस इज फ्री, प्लस दिस पार्ट CH3CHO बच गया, तो CH3CH डबल बॉन्ड O, ये डबल बॉन्ड O बन जाएगा, बॉन्ड अंदर शिफ्ट होगा. क्या बन गया? एसिटाल्डिहाइड. तो इथेनॉल एसिटाल्डिहाइड बन जाएगा और डाइजोनियम क्लोराइड क्या बन जाएगा? बेंजीन. तो दीज आर द टू रिएक्शंस व्हिच कैन कन्वर्ट बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड इनटू बेंजीन. ओके, the next reagent which you can react with benzene diazonium chloride is SnCl2, stannous chloride in NaOH, +2 का चार्ज है, stannous chloride in NaOH. Now when stannous chloride react with NaOH it produce nascent hydrogen. तो ये रिडक्शन में काम आता है बिकॉज ये बॉन्ड ब्रेक करता है. वन ऑफ द H goes to the ring, another H goes to Cl, so it result into the formation of C6H6 plus N2 plus HCl. Or you can take another salt of diazonium, but ये टाइम halide यूज मत करो, फ्लोरोबोरेट यूज करो, BF4-. क्लियर है? सो व्हेन यू टेक दिस सॉल्ट, सोडियम बेंजीन डाइजोनियम फ्लोरोबोरेट. अब ये कैसा बनेगा पता है? आई जस्ट गिव यू अ हिंट इन डिटेल कि इफ यू टेक N2 plus Cl-, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है, ठीक है, समझो इसको हम लोग ने रिएक्ट किया है NaBF4 से. NaBF4 इज कॉल्ड एज सोडियम फ्लोरोबोरेट.
तो NaCl विल बी रिमूव्ड, ठीक है, तो माइनस NaCl निकल गया एंड इट रिजल्ट टू द फॉर्मेशन ऑफ C6H5N2 प्लस BF4 माइनस, ये बनता है बेंजीन डाइजोनियम फ्लोरोबोरेट। इसको अगेन आप रिएक्ट करोगे इथेनॉल से, वो सेम इथेनॉल बट जिंक होना चाहिए, तो ये बॉन्ड है ना यहाँ से डायरेक्टली ब्रेक हो जाता है, H गोज टू दिस रिंग, सो इट फॉर्म C6H6। क्लियर है, C6H6 बन गया, प्लस N2 गैस निकलेगा, प्लस HbF4 निकल जाएगा। बट रिमेंबर दिस फ्लोरोबोरेट यू रिक्वायर। तो डाइजोनियम से आप स्टैनस क्लोराइड NaOH भी डाल सकते हो, हाइपोफॉस्फोरस भी ऐड कर सकते हो, इथेनॉल भी ऐड कर सकते हो, या तो फिर यू कन्वर्ट दैट डाइजोनियम टू डाइजोनियम फ्लोरोबोरेट एंड देन रिड्यूस इट विद अल्कोहल। Okay, so this was the entire preparation of aldehydes and preparation of aromatic compounds. Now let's move on to the chemical reaction in the next video.